सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे यह अवसर देने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार प्रभात नेताजी और प्रोफेसर अनिल कुमार, सबको प्रणाम करते हुए और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड इन लोगों ने बहुत बातें कही हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच रखने का। नाउ as we all know, today we are here to celebrate this national festival with great pomp and joy. Today we are celebrating 79th Independence Day. It means earlier we have celebrated this festival 78 times. So just think about it, why we celebrate this festival every year on this day, 15th August. Because the day of today, 15th August 1947, we got independent. Our country India became an independent nation after a long year of struggle and sacrifices of many Indians, martyrs. After 200 years of slave of Britishers, we got independent on this day. And after that, the day of today, we have got the right to flag posting and posting our flag and all. So let's just talk about our national flag, Tiranga. We can see 3 colors in our flag. On the top, saffron, which stands for sacrifice, and in middle, white, that stands for peace. That we all want to, our nation, it is motto of our country, that we all want to spread peace in all over the country, all over the world. And in the lower, green color, that stands for evergreen and gardening forest. And in the middle we can see chakra, Ashok chakra, and that which have a 24 spokes and which stands for 24 hour in a day, and a lot of meaning or many more meaning of that also, Dhamma chakra, Ashok. And now we all know the ratio of our national flag Tiranga, the ratio of length and breadth is 3:2. Okay, and we got freedom is not free. Freedom is not free. It not means ki we got independent on 15th August and after that we are free to do all these things. We have not to. Every day we have to pay for it. Okay. If we are here to freely, we are celebrating this festival here, then at today, at present, soldiers, 37 to 40 lakh soldiers are not on leave. They all are on duty to protect for us on borders, to protect us. Okay, and every day they fight for this freedom. They pay for this. Okay, so it's freedom is, just remember it, freedom is not free. Every day, every minute we pay for it. Our soldiers are ready for it. Okay, and the patriotism, I think the meaning of patriotism, we all Indians are patriots, but the real meaning of patriotism, I think not in just all of them. You know, at today almost 150 crore, this is our population. So I think every Indian, patriotism is there. They all are patriots, but the real meaning of patriotism, they all are not. Because I think if you are doing your 110% in whatever field what you are doing, then you are the real meaning of patriotism is in you. Otherwise, I think it's like, it's my motto, I don't believe you are, the real meaning of nationalism, patriotism is there in you. If you are doing whatever you are doing, if your work is to study, then you are studying with a discipline, you are giving your 100% effort, whatever the result will become, it doesn't matter.
if you are giving your 100%, you are putting your effort, then you are in a real meaning, you are the feeling of nationalism, patriotism in nature. Because we can't go, everyone cannot go on the borders to represent our country, to protect our country. They all have a different, and all the fields, all technology, है ना, and defense, engineers, doctor, peon, all these posts, this hierarchy of posts, all are important for us. Many times I have heard about on YouTube and all social media, like people are comparing doctors and engineers. Which field is good? Some students are telling AI engineer, paper of engineers are so hard, so this is good and all. No, it's not. Okay, all fields are too important to it. The mother of invention. Need is the mother of invention. If there is no need of doctors, then there is no field of doctor and all. It doesn't exist. It will not exist if there is no need. Okay. If today the sir have also told you about AI and all. If today we are seeing this, the reality, the need of AI or not, this technology. That's why this technology are becoming and coming. Okay. Today there is a need to go on a there is, because spaces on Earth are so big, we can not expand our surfaces of Earth, the area of Earth we can expand. Okay, so the scientists and all sending satellite and always try to research and all these things, trying to free space, the nature and anyone on a planet, other planet like Moon and Mars and all. They are trying to find is there any possibility to live and all. There is possibility to, because now it's going to be becoming our need. That's why they are researching about it. Okay, so always think, just remember it. Need is the mother of invention. Okay, so if there is no need of doctors and any field, then that will not exist. If they are existing in a real life commodity, in a real life, if they are, then it means the need of this. Okay, servants and all posts are so important. And like to organizing this festival, the principal, director, to all this hierarchy, students, all are so important. If we all are here, we all are gathering here together. This all things will be happen by the contribution of all of you, students, teacher, and all of us. That's why this is become possible. It become possible. Okay, so don't compare. If you are interested in those fields, go, because we can't go on the border, because they are also fighting there, because we can stay with a peace. We can live here with a peace. If we all go on a border, then there here no one is to live here. So why we will? All the people have a different field, different criteria. So just understand your interest, in which field you are interested, and just work with it. You just want to go in that field, because all fields are so important. And now I want to salute and all the freedom fighters and Veer Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, all these radical leaders, youths of that time, who just like a faith, Vishwas ka कीमत समझते हैं, faith. They have not seen this free India. They have not seen this. But also the hope of this was one day our country will become independent from the Britishers, and new generation will be born in independent India. On the just faith of this word, they with a happy and all, they hang on until death. Okay. So, and now we know about salute. When I was at your age, then lots of time I get confused about it. Salute. Just if I see some teachers and all with such type of salute, then I think, oh, this one is good. Like, yeah, there are 3 types of salute. Okay, in defense, army, navy, and air force, and all have their respective salutes. Like this one, open palm.
this is salute of army, Indian army, and they are trying to send a message. I have no weapon. Okay, the message of peace. शांति का संदेश देना चाह रहे हैं कि मेरे हाथ में हथियार नहीं है. तो ये आर्मी का सैल्यूट है. हम आप लोगों के समय था तो कभी कंफ्यूज होते थे और बड़े को देखते तो अच्छा ये वाला सही है, लेकिन ये तीनों अपने अपने जगह पे सही है. अब 3 सलाम होते, सैल्यूट 3. ठीक है, तो ये अपना इंडियन आर्मी का, थल सेना का सैल्यूट है, सलाम. ठीक है, संदेश दे रहे हैं शांति का. और ये सलाम जो है ऊपर हवा में ऐसे, ये सलाम है आपका इंडियन एयरफोर्स का. एयरफोर्स जो कि वायुसेना है ना, हवा में रहते हैं, हमारा उनका ड्यूटी होता है, तो इसलिए इस तरह से. और ये इस तरह से पाम हथेली नीचे की ओर जो खुला है, झुका हुआ है, ये सैल्यूट जो है नेवी का सैल्यूट है. क्योंकि वो लोग शिप पे काम करते हैं तो ऑयल और ग्रीस से उनका हाथ गंदे रहते थोड़ा, तो उनका ये सैल्यूट. तो तीनों अपना अपना सैल्यूट अपने अपने जगह पे सही है ना. अब मैं वर्तमान की कुछ अपने देश में परिस्थितियां हैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा. जैसे कि आज़ादी जो हमने अभी कहा कि ऐसा नहीं हुआ था कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जितना किताबों में, किस्से कहानियों में सुनने में आसान दिखता है, ऐसा था नहीं, है ना. कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि में अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन हो गया कि लीजिए आप अपना सरकार चलाइए, यहाँ पे अपना देश के लिए आइन बनाइए, नेहरू जी आप अपना भारत चलाइए और जिन्ना लो अपना पाकिस्तान, हम छोड़ के चले. ये कोई उनका हृदय परिवर्तन अचानक से ऐसा नहीं हुआ है ना. कई सालों की तप था पूरे भारतीयों के, हर एक बच्चा का, महिलाओं, पुरुष, माओ, बहनों, सबका अपने अपने स्तर पर सबका बहुत बड़ी योगदान था, कड़ी मेहनत था, परिश्रम था, कई आंदोलन चले, तब जाकर ये आज़ादी मिली है. और आज भी इसके लिए हम लोग हमेशा हर दिन इसके लिए कीमत चुकाते हैं, या मुफ्त में नहीं. ये नहीं कि एक बार मिल गया तो आराम से. इसके लिए आज भी आज़ाद रहने के लिए, क्योंकि सर ने बताया अमेरिका, चाइना के बारे में बहुत हम लोगों को इस चीज़ों के बारे में बताया कि देखिए कितने अभी हम लोगों से काफ़ी 1-2 गुना नहीं 6 गुना उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है. कहाँ 4 ट्रिलियन, कहाँ 25 ट्रिलियन, 6 गुना से भी अधिक, उतना अंतर है. तो वो लोग बिल्कुल चाहेंगे आप पे दबाव बनाना, और कहीं कहीं पे हम लोग डील नहीं कर पाते, बातें नहीं कर पाते अच्छे से, इसके कारण इस वजह से. तो इस अंतर को बांटने के लिए शिक्षा जरूरी है, जैसा आपने बताया. और तो ये राजनीति से बस ये चीज़ें नहीं मिली, आज़ादी के लिए आज जो लोग पे करते हैं राजनीति से नहीं मिली. ठीक है, तो आज जो हम लोग अपना वर्तमान भारत में चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि जो आंदोलन है, पहले आंदोलन किस लिए हुआ था? आज़ादी के लिए. महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाया है ना. 1919 से जो हम लोग के लिए गौरव की बात है, हम सभी बिहार से आते हैं, और बिहार से के चंपारण जिले से ही उन्होंने अपना आंदोलन का शुभारंभ किया था. यहीं से आए, बाहर से आए, फिर साउथ अफ्रीका से, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा परिस्थितियों को. और कई लोग, हम लोग जब पढ़ते नहीं है किताबें तो कह देते हैं कि गांधी जी से थोड़ी आज़ादी मिला, वो शांति का मार्ग, आज़ाद हिंद फौज बनाया सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह, ये जो रेडिकल लीडर्स थे हमारे, इनसे हुआ. लेकिन नहीं, सबका, भगत सिंह को भी सम्मान करता है, और सबका अपना अपना अपने तरीके से, अपने विचार से अब सबका योगदान रहा है. लेकिन ये अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने अपनाया, क्योंकि वो उस समय भी बहुत पढ़े लिखे थे. कहते हैं ना कि महात्मा गांधी ने अपना जीवन को बैरिस्टर के रूप में जीना आरंभ किया, लेकिन भारतीयों पे दुर्दशा ने उन्हें नेता बना दिया. तो उन्होंने आके देखा कि वो हम लोगों से बहुत शक्तिशाली है अंग्रेज. हम लोगों के अभी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी जूझ रहे हैं नहीं. बेसिक सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं के लिए भी अभी लड़ रहे हैं, नहीं है. तो कहाँ से उसके सामना कर पाएंगे? इसलिए शांतिपूर्वक अहिंसा का उन्होंने मार्ग चुना, और बिल्कुल शिक्षित, पढ़े लिखे, बहुत वकालत किए हुए, तो बातों को रखना उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से आता था. और सही बात रखोगे तो कोई चिढ़ सकता है, लेकिन आप सही बात करोगे तो डिसिप्लिन में रहकर चीज़ें करोगे, तरीके से रिप्रेजेंट करोगे. वो आप आंदोलन किसी के खिलाफ करो, धरना प्रदर्शन करो, आज भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सही तरीके से जाकर वहाँ पे आप संगठित होकर, जैसे सबने बताया, संगठित होकर जाके आप लोग वहाँ पे सामना करोगे, चीज़ों को रखोगे, तो कोई आप पे तुरंत ऐसा ही आरोप प्रत्यारोप भगाने नहीं लगे, है ना. सुनेगा बात. तो पढ़ाई इसीलिए जरूरी कि हम लोग को बातें बोलनी है, वो धरना प्रदर्शन करनी है. आज जरूरत पड़े तो सरकार के खिलाफ खड़ा होने आए,
क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। ऐसे ही जाके कहीं भी नारेबाजी नहीं करने लगोगे, संगठित रूप जो कहे, है ना। तो इस तरह इस बातों को उन्होंने देखा, समझा कि यही मार्ग उचित होगा, ये करना होगा, और किसी को मना नहीं किए। जैसे कि हमने बोलता है कि आज़ादी तो हुआ सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों के कारण हुआ। खुदीराम बोस हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ये रेडिकल लीडर थे। नरम दल के नेता जो सर ने बताया महात्मा गांधी, और ये लोग गरम दल, इनके कारण नहीं, उनका भी बिल्कुल योगदान था। ये सबका अपने स्तर पे बिल्कुल रहा है। लेकिन लोगों को देखो, महात्मा गांधी ने कभी मना नहीं किया कि तुम लोग नहीं करो, तुम लोग का जो सोच विचार अपने अनुसार तुम लोग भी करो, क्योंकि वो भी योगदान ही है, तुम्हारा भी, सबका लक्ष्य एक ही है ना। हम लोग जो सब पढ़ते हैं अलग अलग चीजें, तो सब अपना तरीका होता है सबका अपना टारगेट पूरा करने का। किसी का है कि रात में जाकर पढ़ेंगे, किसी को दिन वाला शूट कर रहा है, दिन में एक पढ़ रहा है, ना तरीका अलग है, सबका लक्ष्य वही है। तो सबका तो लक्ष्य उसमें वही था कि भारत आजाद हो, हम लोग अपना आइन खुद बनाए, है ना। तो सबको सम्मान करनी चाहिए, कंपैरिजन की उसमें तुलना की बात नहीं, सबका योगदान रहा है तब जाकर हुआ, क्योंकि ये बहुत मामूली चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ा तब है ये गया, तब जाकर ये मिली आज़ादी, ये राजनीति से मिली थी। और अब लेकिन ये चीज़ें हमको खलती है, और एक पता नहीं कैसी विडंबना है, बिल्कुल अशोभनीय है कि आज हम लोगों के अपने ही देश में अपने ही राजनेताओं से शासकों के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा, है ना। उस समय विदेशों से, अंग्रेजों से लड़ने में वो शोभा देता है, अच्छा लगता है कि हम सब एकत्रित होकर उन समय के युवाओं, जैसे आज हम लोग हैं, तो उन समय के जो युवा थे, वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन सब लोग अपने मीटिंग बैठाते थे, बातें करते थे, और अपने अपने तरीकों से उन लोगों ने अंजाम दिया चीज़ों को, है ना। तो अच्छा लगता है। लेकिन आज ये बिल्कुल शोभनीय नहीं कि आज हम अपने ही देश में अपने सरकार के खिलाफ, अपने लोगों के पीछे आंदोलन करना, और ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है कि। और लेकिन ये विडंबना है कि आज हम लोग जैसा कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, फिर भी हालात ये है कि सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको हम लोग आसानी से बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनको न्यूज़ से, नोटिस से उनके कान में जू तक नहीं रेंगते। हम लोग के आज भी उनको बात पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आक्रोश करना पड़ रहा है। एसएससी के स्टूडेंट का देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी सब लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ कि एक बार, और इसके लिए नहीं कि हमारा क्या बोले क्या वैकेंसी बढ़ा दो, इसके लिए भी नहीं, सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरा करा दीजिए, हमको जो परीक्षा ले रहे हैं वो ढंग से करा लीजिए, बस सिर्फ इसलिए लड़ाई है। ये भी नहीं कर रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसी निकाल दो, इसके लिए लड़ाई नहीं है। इस बात के लिए भी लड़ना पड़ा है, बहुत बिल्कुल अशोभनीय है कि आज इसलिए भी लड़ना पड़ा कि मूलभूत सुविधाएं हमें पूरा करवा दीजिए, सही से आप परीक्षा ले लीजिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जरूरत पड़ेगा तो सरकार के इसलिए भी जवाब दी जाएगी। आंदोलन करना होगा तो आंदोलन जगह पे अपने अपने लोग कर ही रहे, अपने तरीके से होगा ही, इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे, सीखेंगे हम लोग किस तरह से चीज़ों को करना है। और इस चीज़ों को करते हुए मैं अंत में इस बातों से, क्योंकि आज़ादी संगठन से मिला है, आंदोलनों से मिला है, ये राजनीति से नहीं मिली है। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना ढोल मंजीरे की, ना आवाज मंजीरे की, खन खनाहट गूंजती थी, खन खनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। याद कीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा इंसिडेंट और कई सारे इंसिडेंट। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। सौदा राजनीति से मिली नहीं है, ये आजादी राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदा है पैसों से, ना ही खरीदा है पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ।